तो औपचारिकताएं पूरी की जा रही, थोड़ी देर में औपचारिक ऐलान। लेकिन 528 सांसदों ने वोट किया। हमने आपको पहले जानकारी दी थी 525 के आसपास सीटें मिल सकती हैं और 528 सीटें मिली जगदीप धनखड़ को। एक लंबा सियासी सफर, सियासी अनुभव रहा है जगदीप धनखड़ को। 2003 में बीजेपी में शामिल हुए, 1993 में जो है वो पहली बार विधायक चुने गए, 2019 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जो है वो बने और अब रिजल्ट का वाइस प्रेसिडेंट वाज इशूड ऑन 5th July 2022. In all, 50 nomination papers were received till the last date for submission of nomination papers. After scrutiny, nomination papers filed by Shri Jagdeep Dhankar and Srimati Margaret Alva were found valid. The polling for the 16th Vice Presidential Election 2022, which commenced at 10 a.m. today in the Parliament House, closed at 5 p.m. Out of 780 electors comprising of elected and nominated members of Rajya Sabha and elected members of Lok Sabha, 725 electors cast their votes. The total elector turnout was accordingly 92.94%. The ballot box was sealed immediately after the close of poll at 5 p.m. in the presence of authorized representatives of contesting candidates and election observers. The counting of votes commenced at 6 p.m. after the ballot box was opened in the presence of authorized representatives of the contesting candidates, election observers and counting officers. 725 votes were polled, which was 92.94% of the total electorate. 710 votes were found valid and 15 votes were found to be invalid. Thus, the percentage of valid votes is 97.93%. The quota sufficient to get a candidate elected is determined by dividing the total number of first preference votes secured by both candidates by 2 and then adding 1 to the quotient. The quota necessary for being elected to the office of Vice President of India was determined to be 356 votes. On the basis of counting, Shri Jagdeep Dhankar secured 528 first preference votes and Srimati Margaret Alva 182 votes. Therefore, in pursuance of the provisions contained in Section 11 of the Presidential and Vice Presidential Elections Act 31 of 1952, read with Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974, I, Utpal Kumar Singh, the Returning Officer for the Vice Presidential Election 2022, hereby declare that Shri Jagdeep Dhankar, Raj Bhavan, Ward 45, Hare Street, Kolkata 700001, has been duly elected to the office of Vice President of India. I will be forwarding to the Election Commission of India Form 7 under Rule 35(1)(c), which is the return of election to the office of the Vice President of India, and also a declaration of result of election under Section 11 of the Presidential and Vice Presidential Elections Act 1952, read with Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974. Election Commission of India would then prepare the certification of the election of Shri Jagdeep Dhankar as the Vice President of India, jointly signed by the Chief Election Commissioner of India, Shri Rajiv Kumar, and Election Commissioner, Shri Anup Chandra Pandey. Thank you. So you will go to election today? We will send all the necessary papers to the Election Commission immediately after. Thank you. जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि
5 जुलाई 2022 को उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में नोटिस जारी किया गया था और तत्पश्चात 50 नामांकन पत्र हमें लास्ट डेट ऑफ सबमिशन तक प्राप्त हुए थे। इन नामांकन पत्रों की स्क्रूटिनी के पश्चात श्री जगदीप धनखड़ एवं श्रीमती मार्गरेट आल्वा के नामांकन वैलिड पाए गए। आज प्रातः 10 बजे से पोलिंग प्रारंभ हुआ पार्लियामेंट हाउस में, जो सायंकाल के 5 बजे तक वो चला। 780 इलेक्टर्स में से 725 इलेक्टर्स ने अपने मतदान का प्रयोग किया। यह 92.94% है। 5 बजे के पश्चात बैलेट बॉक्स को सभी कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स के प्रतिनिधियों तथा इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर्स के सामने सील कर दिया गया एवं 6 बजे के बाद इन्हें सभी प्रार्थियों के एजेंट्स, इलेक्शन ऑब्जर्वर्स तथा काउंटिंग ऑफिसर्स के समक्ष इन्हें इस बैलेट बॉक्स को खोला गया। मतगणना में यह पाया गया कि 725 मत डाले गए थे, जो कि टोटल इलेक्टोरेट का 92.94% है। इन 725 मतों की जब गणना की गई तो ये पाया गया कि 710 इनमें से वैध हैं और 15 मत पत्र वो अवैध पाए गए। इस प्रकार से जो वैध मतों का प्रतिशत है वो 97.93% है। इसी के साथ जगदीप धनखड़ जो है औपचारिक तौर पर उनके नाम का ऐलान हो चुका है। देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे जगदीप धनखड़। 14वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं जगदीप धनखड़। और आप देख सकते हैं जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। जगदीप धनखड़ इस वक्त केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के घर पर मौजूद हैं और वहां पर आप जश्न की तस्वीरें देख रहे हैं। और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी यहां पर पहुंचने की खबर है, वो बधाई देने के लिए पहुंचेंगे। जगदीप धनखड़ एनडीए के उम्मीदवार, वो भारी मतों से उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने जा चुके हैं। 528 वोट जो है उन्हें सांसदों के मिले, क्योंकि अब जैसा हमने आपको बताया कि केवल सांसदों के वोट जो हैं अब वो पड़ते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। अब एक एक करके आप देखिए नेताओं का उनसे मिलने आने का सिलसिला शुरू हो गया। इस वक्त जेपी नड्डा वहां पहुंचे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जगदीप धनखड़ को बधाई देने के लिए 11 अकबर रोड पर पहुंचे हुए हैं। जय जवान, जय जवान, तो आप जेपी नड्डा पहुंचे हैं अभी बधाई देने के लिए। जगदीप धनखड़ को जश्न मनाया जा रहा है। वहां पर आप देख रहे हैं इस वक्त केसरिया साफों में तमाम लोग आपको वहां पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं, ढोल बज रहे हैं। तो राष्ट्रपति पद के बाद अब उपराष्ट्रपति पद पर भी एनडीए के उम्मीदवार की जीत। जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले। मार्गरेट आल्वा जो कि विपक्ष की उम्मीदवार थी, यूपीए की उम्मीदवार थी, उन्हें 182 ही वोट मिले हैं। और आपको बता दें कि ये जो वोट मार्गरेट आल्वा के हैं, ये यूपीए की जो अनुमान लगाया जा रहा था कि कम से कम वोट मिलेंगे, उससे भी लगभग 18 वोट कम है। उनको 200 वोट पड़ने की उम्मीद थी। 17 वोट जो इनवैलिड हुए हैं, ऐसा लगता है कि वो ज्यादातर वोट जो थे या सभी वोट ऐसा लगता है कि वो जो मार्गरेट आल्वा के लिए डाले जाने वाले वोट थे वही इनवैलिड पाए गए हैं। और एनडीए के बारे में आपको बता दें, एनडीए समेत जो बाकी गैर एनडीए भी लेकिन जो समर्थन कर रहे थे जगदीप धनखड़ का, वो सारे दल जैसे बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस, बीएसपी, टीडीपी, अकाली दल, शिंदे, एकनाथ शिंदे के शिवसेना के जो सांसद थे, उन तमाम लोगों को मिलाकर के उनकी संख्या लगभग 527 के करीब बैठ रही थी। उससे भी एक वोट ज्यादा ही मिला है जगदीप धनखड़ को और 17 वोट इनवैलिड करार दिए गए हैं। यानी मार्गरेट आल्वा को मिलने वाले बहुत से वोट जो हैं वो इनवैलिड हुए। जगदीप धनखड़ भारी अंतर से जीते हैं इस बार।
और जो वोट का उनका प्रतिशत है वो माना जा रहा है कि 70% से ज्यादा है। और वेंकैया नायडू जो अब तक उपराष्ट्रपति थे उनसे भी ज्यादा वोट जगदीप धनखड़ को मिले हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो जगदीप धनखड़ को 528 वोट, मार्गरेट अलवा को 182 वोट, और इसमें ममता बनर्जी की पार्टी से खास तौर पर जैसा आप जानते हैं कि वोट नहीं डालने का ऐलान किया गया था, और 36 सांसद लोकसभा राज्यसभा के मिला करके ममता बनर्जी की पार्टी के थे, तो वो वोट आज नहीं डलने थे, लेकिन उसमें से भी 2 वोट पड़े हैं और वो जगदीप धनखड़ को पड़े हैं। 36 में से 34 वोट जो हैं वो एब्सटेन हुए, जिन्होंने वोट नहीं डाले टीएमसी से। और जैसा ऐलान किया गया 780 में से कुल 725 वोट ही आज डले हैं। कुल संख्या 780 बैठती है लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों को मिला करके। इसमें से कुछ सांसदों के जो पद हैं वो रिक्त भी हैं, और जैसे ममता बनर्जी की पार्टी ने वोट नहीं डाला, कुछ एक सांसद जो है किसी वजह से नहीं आ पाए, उनका वोट नहीं डला है, लेकिन 70% से ज्यादा वोट जो है जगदीप धनखड़ के खाते में गए हैं। और यूपीए की उम्मीदवार की बुरी हार, मार्गरेट अलवा की बुरी हार उपराष्ट्रपति चुनाव में हुई है। हालांकि इसमें कोई आश्चर्य नहीं था, और ये गणित भी पहले से बिल्कुल साफ था, क्योंकि सभी दलों ने ये पहले से घोषित कर रखा था कि वो किसके साथ हैं। और एनडीए ने एक बार फिर अपने घोषित समर्थक दलों के अलावा बहुत सारी और पार्टियों का साथ लेने में कामयाबी हासिल की है। और जेपी नड्डा आपको दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी के अध्यक्ष, का काफी श्रेय जो है उनको भी जाता है। हमने जैसे आपको बताया बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस, ये सब जो है एनडीए का हिस्सा नहीं है। बीएसपी, टीडीपी, अकाली दल, इन सब ने भी जगदीप धनखड़ को वोट देने का ऐलान किया था। जब जगदीप धनखड़ की उम्मीदवारी का ऐलान हुआ तो आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन्हें एक किसान पुत्र की संज्ञा दी थी, और उनकी उम्मीदवारी पर उन्हें बधाई दी थी। और अब से थोड़ी देर में अब उनकी जीत के बाद उन्हें बधाई देने के लिए पहुंचेंगे। देवेंद्र पराशर के पास चलते हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, आंकड़े वही हैं जिनका अनुमान था, बल्कि मार्गरेट अलवा को जितने वोट पड़ने चाहिए थे उससे भी कम वोट पड़े। बिल्कुल सर, लेकिन पहले एक अपडेट दे दूं कि पीएम ऑलरेडी निकल चुके हैं और 11 करोड़ के रास्ते में है। मतलब ये कि अब से कुछ मिनट के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे 11 करोड़ जो कि संसदीय प्रधानमंत्री प्रहलाद जोशी का आवास है, और पिछले कुछ दिनों से कैंप ऑफिस के तौर पर यहाँ पे काम कर रहा है जगदीप धनखड़ के लिए, तो उनको बधाई देने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। और इसलिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहले यहाँ पहुंचे हैं, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करेंगे, उसके बाद लेकर उनको वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट धनखड़ के पास जाएंगे। दूसरी चीज के नंबर्स को लेकर निश्चित तौर पर वो अंदाजा था, लगभग इसके करीब रहा। इतना जरूर है कि क्योंकि अपोजिशन ने बहुत लचर तरीके से इस चुनाव को लड़ा, तो उसमें जो इनवैलिड वोट्स आप देख रहे हैं, 15 इनवैलिड वोट, उसमें से लगभग तय मानिए कि अधिकांश इनवैलिड वोट अपोजिशन के ही होंगे, क्योंकि उनकी तरफ से कोई भी कोशिश नहीं दिखी। एनडीए की तरफ से पहले भी हमने बताया कि कल शाम भी एक बाकायदा वर्कशॉप चला है, और वो वर्कशॉप सौरभ ऐसा कि ये बात नहीं कि सिर्फ उसमें जानकारी दे दी गई, बल्कि मॉक ड्रिल कराया गया वोटिंग का। और लगाया कि राष्ट्रपति देवेंद्र, मैं आपके पास आता हूं, आगे पीछे काफी ढोल नगाड़ों की आवाजें जो है बहुत तेज आ रही हैं, जश्न बन रहा है क्योंकि, और जैसा कि देवेंद्र ने आपको बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब किसी भी वक्त 11 अकबर रोड पहुंचने वाले हैं, जो कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का आवास है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, जैसा देवेंद्र कह रहे थे, कैंप ऑफिस के तौर पर काम कर रहे थे। इसी स्थान से इस कैंप ऑफिस के तौर पर काम लिया जा रहा था यहां से उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए। आप देखिए कैसे लोग जो है पारंपरिक वेशभूषाओं में वहां पर मौजूद हैं, काफी संख्या में महिलाएं आपको वहां मौजूद दिखाई देंगी। आतिशबाजी की जा रही है जगदीप धनखड़ की जीत के ऐलान के बाद। जो जीत पहले से निश्चित थी, तय थी, लेकिन उसका औपचारिक ऐलान अभी अभी हुआ है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां किसी भी क्षण पहुंचेंगे। जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। उनके पहुंचने का मतलब ये है कि वहां पर अब प्रधानमंत्री कभी भी आ सकते हैं। प्रधानमंत्री रवाना हो चुके हैं 11 अकबर रोड के लिए जगदीप धनखड़ को बधाई देने के लिए। मिठाइयां बांटी जा रही हैं, मिठाई खिलाई जा रही है एक दूसरे को, जश्न का माहौल है। पहले राष्ट्रपति चुनाव में भारी जीत, और उसके बाद अब उपराष्ट्रपति चुनाव में भी भारी भरकम मतों से जगदीप धनखड़ की जीत। और जो देवेंद्र ने भी आपको बताया, मार्गरेट अलवा यानी यूपीए के खेमे में या विपक्ष के खेमे में भारी खलबली मची हुई थी। पहले ममता बनर्जी ने समर्थन खींच लिया, उन्होंने वोट नहीं डाला, और उसके बाद जितने वोट पड़ने चाहिए थे उसमें से भी बहुत सारे वोट इनवैलिड करार दिए गए। जो कुल 17 वोट इनवैलिड करार दिए गए, ऐसे लग रहा है कि वो लगभग सभी वोट जो हैं वो मार्गरेट अलवा को जाने वाले वोट थे। यानी अब ये भी जानबूझकर हुआ, क्रॉस वोटिंग की बजाय इनवैलिड वोट हुए इस बार, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में भारी संख्या में क्रॉस वोटिंग हुई थी। 125 विधायकों ने और 17 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की थी राष्ट्रपति के चुनाव में। उपराष्ट्रपति चुनाव में
लगता है कि ज्यादा जो है इनवैलिड वोट जो है उसने नुकसान किया है विपक्ष के उम्मीदवार का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।